mathematics, we will discuss some topics, some chapters. First one is integral calculus. In this chapter, we will discuss indefinite integral and type of integral. Second one is integral calculus starting. In this chapter, we will discuss definite integral and application of it, like volume and area of different curves. Also, we will discuss some numerical methods, function, rule, trapezoidal rule, bisection method, regular Falke method, Newton-Raphson method, numerical solution of simultaneous equation, and last, Gauss's elimination method. And the third chapter, coordinate geometry. In this chapter, we will discuss circle, equation of circle in standard form, radius, diameter, form, and two intercept, and the fourth chapter, coordinate geometry theory. In this chapter, we will discuss straight line and plane in space, distance between 2 points in space, direction, cosine and direction, cosine and direction ratio, and finding equation of a straight line. The first topic of this mathematics is indefinite
integral. So first we know what the integration. Integration is the inverse process of differentiation. The differentiation you have discussed last semester. Next, we understand that if the derivative of capital F is equal to, then we say that the antiderivative of integral of f(x) is capital. Like that, integration f(x) dx equal to capital F. Thus, the differentiation of capital F(x) is f(x). So, that integration f(x) dx equal to capital F(x) dx. Let us take an example. Since differentiation of sin x with respect to x equal to cos x, we have integration of cos x with respect to x equal to sin x. Moreover, if c is any constant, then differentiation of sin x plus c equal to cos x. So in general, the integration of cos x dx equal to sin x plus c. Clearly, different values of c will give different integral. That's why it is called indefinite integral. Integration. बहुत आसान बात है. On the basis of this differentiation and the definition of integration, we have some results. First one, the differentiation of x to power n plus 1 upon n plus 1 equal to x to power n. So that the integration of x to power n
dx equal to x to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. And the integration log x, the differentiation of log x will be 1 upon x, so that the integration of 1 upon x dx is equal to log x plus constant c. The differentiation of e to power x equal to e power x, so that the integration of x e to power x dx is equal to e to power x plus constant c. And the differentiation of a to power x upon log e a equal to e to power x, so that the integration of a to power x dx is equal to e to power x log e a plus constant c. The differentiation of sin x equal to cos x, so that integration of cos x dx is equal to sin x plus c. The differentiation of minus cos x is equal to positive sin x, so that the integration of sin x dx is equal to minus cos x plus constant c. The differentiation of tan x equal to sec square x, so that the integration of sec square x dx equal to tan x plus constant c. The differentiation of minus cot x equal to sec square x to sec square x, so that the integration of sec square x dx equal to minus cot x plus constant c. यहाँ पर हम दोनों ही फॉर्मूलों को यूज कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं उसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद करेंगे. नेक्स्ट, the differentiation of sec x dx equal to sec x into tan x, so that the integration of sec x tan x dx equal to sec x plus c. और भी कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी हम बात करते हैं. साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी. तो जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि फॉर्मूले जस्ट इनवर्स हो रहे हैं इंटीग्रेशन में. तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan inverse x equal to 1 upon 1 plus x square, so that the integration of 1 upon 1 plus x square dx is equal to tan inverse x plus constant c. Differentiation of sec inverse x equal to 1 upon x root x square minus 1 dx, so that the integration of x root x square minus 1 dx equal to sec inverse x plus c. अब यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूलों को समझा और उनको याद करने की कोशिश करेंगे. अब उस
फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है उन पे हम काम करते हैं जो बहुत आसान है और एक नंबर। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब हमने फॉर्मूला सीखा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर को इजी करेंगे। यहाँ पे जो षड या कर्णी चिन्ह लगा है उसको हमने हटा के कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस, ये नो वेरी वेल। अब हमारे लिए ये जो पावर है वो एन की तरह काम करेगी। बहुत आसान, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। सॉल्व किया, एक्स की पावर 4/3 एंड 4/3, और लिख सकते हैं इसको हम 3/4 एक्स की पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। सिंपल। और देखिए, और लेते हैं 5x³ 2x की पावर -5 -7x 1/x की हाफ प्लस 5/x डी। इन सभी को सॉल्व करने का वही तरीका है, सबको हमें x की पावर में इजी कर लेना है। यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर -12 हो गया, और यहाँ इसको हम अलग दिखा सकते हैं। सबको अलग अलग इंटीग्रेट साइन लगाएं। x की पावर -5 dx, 7x dx, x की -12 dx, 5 1/x dx, 5x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 2x की पावर -4 प्लस 1 -5 प्लस 1, 7 into x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, पॉजिटिव, x की पावर -1/2 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस 1। और ये अलग से फॉर्मूला होता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बिकम log x प्लस कॉन्स्टेंट सी। विधि कर लेंगे आप, बहुत ही आसान। और कुछ प्रॉब्लम पर काम करते हैं। ये है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan² dx। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं, tan², cot², sec², cosec²। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला को कि हमारे पास tan² को लेके कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है, पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जानते हैं कि 1 प्लस tan² इक्वल टू sec², so that tan² इक्वल टू sec² minus 1. The integration will become sec² minus 1 dx। अब हमारे लिए आसान हो गया ये सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास sec² का इंटीग्रेशन होता है। दिस बिकम tan x minus x plus constant c। और देखिए कुछ और फॉर्मूलों में, जैसे अब हमारे पास हमने tan को लेकर काम किया, आप cos² और cosec² cot² लेकर भी काम कर सकते हैं। और बात करते हैं sec x प्लस के tan x दिया। इसको कुछ इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, sec x प्लस के tan x
इसका हमने कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या हुआ, सेकेंड माइनस 2 10, ये बाय द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सो दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बिकम 1, तो ये रिजल्ट 1 देगा। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस के सेक एक्स 10x dx। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये हो गया हमारे लिए 10x और ये हो गया हमारे लिए सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आसान। और और भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी है। जो जितनी भी प्रॉब्लम अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सब कभी आपके बोर्ड में आई हुई है, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड 1। तो इस 1 को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये अलग अलग हमने इसमें डिवीजन लगाया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया। जैसे ये हो गया, बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बिकम सेक स्क्वायर एक्स दिया। ऐसे ही यहाँ से हो गया ये स्क्वायर एक्स दिया। अब आप बता रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। और बात करेंगे एक और अलग टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे एक और प्रॉब्लम है हमारे पास cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा एंड cos x माइनस के cos ऑफ अल्फा, इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल और फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos एक्स माइनस cos ऑफ अल्फा। ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 cos एक्स माइनस cos ऑफ अल्फा। 1 से 1 फिनिश हुआ, 2 कॉमन लेके हमने आगे लिख दिया cos एक्स माइनस cos ऑफ अल्फा दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने थीटा से ब्रेक कर दिया, cos एक्स माइनस cos अल्फा एंड cos एक्स प्लस के cos ऑफ अल्फा। माइनस टर्म वाला नीचे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपल रह गया cos एक्स माइनस के cos प्लस के cos अल्फा दिया। तो 2 into cos एक्स का इंटीग्रेशन sin एक्स
और चूंकि कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है तो ये केवल एक्स और है एक और प्रॉब्लम, उसमें भी बात करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम और है हमारे पास एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी है। तो क्योंकि अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह नहीं सीखा है तो इसको और तरीके से करते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर 1 माइनस किया और 1 प्लस किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया। और इसकी लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग डिवीजन लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, प्लस वाला टर्म इसमें कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स एंड माइनस साइन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन इजीली एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स और ये कैन इनवर्स का फॉर्मूला होता है प्लस फंक्शन पी।